السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈ ایئر کی جو نثر بھاگ ہے اس میں ایک چیپٹر ہے یار باش، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کے آگے کا ہم پڑھتے ہیں۔ یار باش مرزا فرات اللہ بیگ نے لکھا ہے، اور مرزا فرات اللہ بیگ نے ایک ان کے دوست ہیں جن کا نام احسان اللہ خاں ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور ان کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یار باش جو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ یار باش آخر ہے کیا۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو یار باش ہے وہ دراصل جو کردار ہے مرزا امان اللہ خاں کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو امان اللہ خاں ہیں وہ ایک مذاق کے ذریعے سے اپنی ذات کو ہی مذاق کا مرکز بناتے ہیں، اور جس جگہ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، وہاں پر وہ کیندر بندو نا، جو مرکز ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، اور ساری بحث کا وجود وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے دو دوست ہیں، جو ایک تو شیورلے گاڑی لے کے آئے ہیں، اور ایک جو دوسری گاڑی ہے وہ لے کے آئے ہیں، تو ان میں آپس میں بحث ہونے لگتی ہے، تو وہاں پر مرزا آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مجلس کا رنگ کچھ بگڑا ہوا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس جھگڑے کی وجہ پوچھی، اور پھر خود ہی حکم جج بن گئے۔ کہنے لگے، ارے بھائیوں، تم خواہ مخواہ لڑتے ہو، آج کل کی موٹریں بھی کوئی موٹریں ہیں؟ بیل سے ٹکر ہوئی، مڑگاڑ ٹوٹ گیا، ذرا گڑھے کی گری، دھرا دو ٹکڑے ہو گئے اور پہنچ بیٹھ گیا۔ یہ اب کوئی موٹریں ہیں؟ یہ اب کوئی موٹریں تھوڑی ہیں، ٹین کی جاپانے کھلونے ہیں۔ جتنی رقم ہوئی ہے ظاہری ٹپ ٹاپ کی لگا دی جاتی ہے۔ اب رہے کل پرزے تو بس ان کو اللہ ہی مالک ہے، پھر اس پر غضب ہے۔ میاں طفیل احمد کہتے ہیں کہ میری موٹر اچھی ہے۔ احمد نے جل کر کہا، تو آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ احسن نے کہا، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، بری چیزوں کا مقابلہ کیا کرنا۔ کبھی کوئی یہ بحث کرتا ہے کہ میں تم سے زیادہ بیوقوف ہوں۔ بندہ خدا، اگر بحث ہی کرنی ہے تو پہلے کسی اچھی موٹر کا معیار بتاؤ، اور اس کے بعد اپنی موٹروں سے اس کی ہر چیز کو ملاؤ، جب کہیں جا کر کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب تمہارے سامنے ایک معیار موجود ہوگا تو پھر دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ محمود نے کہا، وہ معیار کون سا ہے؟ احسن نے کہا، میری ولکنس موٹر۔ اب مرزا احمد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ اگر تمہیں اپنی موٹر گاڑی کے اوپر بحث کرنی ہے تو آپ کی موٹر تو چھوڑ دیجئے، اور میری موٹر جو ولکنس موٹر ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک کہکا مارا، کیوں نہ مارتے، جب موٹر کا معیار احسن کی ولسن موٹر پر آ گیا۔ ان کی موٹر روز ہی دیکھتے تھے، مگر یہ کسی کی وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایک دن 1903 کی موٹر 1938 کی V8 اور شیورلے کی معیار سے بنا دی جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی جو موٹر ہے اس کو اس لیے لائے تھے کہ وہ جو دونوں بحث کر رہے تھے اپنی موٹر کو اچھا بتانے کے لیے، ان کی بحث ختم ہو جائے اور کہے لگ جائیں۔ پیٹرول سے چلتی ہے، اس لیے لغوی معنی میں موٹر تو کہی جا سکتی ہے، مگر اس کی ظاہری اور باطنی حالات کے لحاظ سے اس کو موٹر کی تعبیر کرنا خود لفظ موٹر کی توہین ہے۔ بلندی کے لحاظ سے اونٹ گاڑی، ساخت یعنی بناوٹ کے لحاظ سے بگھی، اور چال کے لحاظ سے جھگڑے، اور آواز کے لحاظ سے چرخے کی تعریف اس پر
पूरी तरह सादिक आती है। जब हंसते हंसते सब थक गए तो मियाँ एहसन ने बहुत मतानत से कहा, बहुत संजीदगी से कहा, देखो भाई, हम ये समझते हो गए कि मैं तुम्हारे हंसने से बुरा मान जाऊंगा, तो जनाब इससे आप बेफिक्र रहिए। आपके हंसने से मेरी मोटर की खूबियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। वह जैसी थी वैसी ही है और आइंदा भी वैसी ही रहेगी। अगर आपको उसके ख़िलाफ़ कुछ फरमाना है तो उसका जवाब देने के लिए बंदा हाजिर है, मगर बराए मेहरबानी मेरी दलील को महज हंसी उड़ाने की कोशिश न कीजिए। दलील का जवाब दलील से दिया जाता है। नासिर ने कहा, उनका एक दोस्त है जिनका नाम नासिर है, उन्होंने कहा, ये आपकी मोटर साहिब कब अदम से वजूद में आई थी? एहसन ने कहा, 1903 में। नासिर ने कहा, जी नहीं मिर्ज़ा, सौदा के ज़माने की थी। चुनाचे उन्होंने इनके मुतालिक इरशाद फरमाया। और इरशाद क्या फरमाया? सादिक मियाँ जो शायर थे, लेकिन मुझे ज़रूर तवारीख़ याद है, शैतान इसी पे निकलता था जन्नत से हो सवार। क्या कहा? लेकिन मुझे ज़रूर ज़र्वे तवारीख़ याद है, तारीख़ याद है, शैतान इसी पे निकलता था जन्नत से सवार। जब ये आपकी गाड़ी तब की है जब शैतान जन्नत का हुआ करता था। ऐसा न कहा, बहुत खूब। अगर आपकी यही हुज्जत है तो इसी पहलू से चलिए। आप इसी तरह गोया तस्लीम करते हैं तो ये मोटर जन्नत की सवारी है। इसलिए नतीजा ये निकलता है कि दुनिया की बनी हुई हर चीज़ से बेहतर है। भला फरिश्तों की बनाई हुई हर चीज़ का मुकाबला कहीं मोटर फोर्ड की कारखाने के लिए कर सकते हैं? नासिर ने कहा, मगर शैतान इस पर बैठकर निकलता था। एहसन ने कहा, इससे क्या होता है? अगर रोल्स रॉयस पर कोई गधा बैठकर निकलता है और दूर से, तो रोल्स रॉयस की खूबी में क्या कोई कमी आ सकती है या कोई फ़र्क हो सकता है? रोल्स रॉयस भी एक मोटर का नाम है। मगर खालिद ने अब इस सिलसिला गुफ्तगू को लिया और कहा, हज़रत, ये मोटर उस ज़माने की है जब मैं और आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे। अब इसको मोटर कहते हुए शर्म आती है। ऐसी पुरानी चीज़ अब भले आदमियों की नहीं, कबाड़ियों के काम की है। उन्होंने एक तंज़ कहा, एक फ़िक्रा कहा। फिर क्या हुआ? तो आपकी बहस का ये मतलब है कि पुरानी चीज़ दुनिया में रहने के काबिल नहीं। मुझे तो यहाँ एक भी नज़र नहीं आता जो बुढ़ा होने के बाद अपने बाल बच्चों से कहे कि मेरा गला घोंट दो, अब मैं दुनिया में रहने के काबिल नहीं। हज़रत, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये आपने सुना ही होगा। क्यों जी, ये दुनिया भी तो बहुत पुरानी है, इतने दिन से बराबर चल रही है। कल पुर्जे सब घिस गए होंगे, इसके मुतालिक कोई नहीं कहता कि इसको क्या कबाड़ी के यहाँ बेच दो। अब ये क्या हमारे रहने के काबिल नहीं रही? मैं ये रबानी जमा खर्च नहीं जानता। मेरी मोटर में कोई ख़राबी बताओ। अहमद ने कहा, ऊंची बहुत है और फैशन के ख़िलाफ़ है। एहसन ने कहा, भाई वाह वाह, क्या समझ की बात है। मियाँ, कद ऊंचा अच्छा और ठिगना ऊंचा अच्छा है या ठिगना अच्छा है? मियाँ महमूद जो दूसरे थे वो ठिगने थे, इसलिए उन्होंने इसको अपने ऊपर लेकर कहा, ये इतना ऊंचा सरापे का बांस मालूम हो। एहसन ने जवाब दिया, इसका तस्फिया तुम खुद आसानी से कर सकते हो कि सरांचे का बांस होना अच्छा है या दुनिया की बुढ़िया। परसों का फुटबॉल मैच भूल गए कि किस तरह लोगों के पीछे खड़े उचक कर देख रहे थे। देखिए साहब,
मोटर के ऊंचे होने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा तो है, नीची मोटर के सामने अगर कोई पत्थर आ जाता है तो इंशा अल्लाह कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर शहीद हो जाएगा। अब रही हमारी मोटर, उसके सामने पत्थर तो क्या, अगर पहाड़ भी आ जाए तो ख़बर न हो, मोटर के नीचे से साफ निकल आए। कासिम ने कहा, ऊंची मोटर उलट जल्दी जाती है। एहसन ने जवाब दिया, बेवकूफ़ी से चलाओ तो उल्टा लाजमी है, ख्वाह वह ऊंची हो या नीची। देखना यह है कि नुकसान किस में ज़्यादा हुआ है, ऊंची में या नीची में। ये तो तुमने सुना ही होगा कि ऊंट पर से गिरने में चोट कम लगती है और गधे पर से गिरने में ज़्यादा, क्योंकि ऊंट पर से गिरते गिरते आदमी संभल जाता है। यही हाल मोटर का है। आखिर ऊंची मोटर से लुढ़कने में कुछ तो देर लगेगी। अब यहाँ पर भी मियाँ एहसान ने अपने ऊंची मोटर होने की तारीफ़ें बयान करी और उसकी तशबीह ऊंट से दी कि ऊंट से गिरते हैं, एक गधे से गिरते हैं, तो जितनी ऊपर से गिरते हैं इतना वक्त मिल जाता है हमें संभलने में। अगर इतनी देर में भी इंसान न संभले तो ये खुद उसका कसूर है, न कि मोटर का। अब रही आजकल की नीची मोटरें, तो जनाब उनमें माशाअल्लाह ऐसा मजबूत टीन इस्तेमाल होता है कि एक ही फकलाबाजी में पीच कर पताशा हो जाता है। और हमारी मोटर तो हज़रत ये खुदा का फ़ज़ल है कि 20 से 25 दफ़ा लुढ़क चुकी है, अब तक जैसी थी वैसी है। कसम खुदा की फौलाद ढांचा है, कहो तो पहाड़ के जाकर टकरा दूं। ज़रा कहिए कि जाए तो मेरे मियाँ ज़िम्मा, नसीर ने कहा, और ये चलने में गुल मचाती है, यानी कि आवाज़ करती है। मैं इसमें कोई खूबी है, एहसन ने कहा, और क्या आपकी राय है ये पुरानी है? मैं तो जानबूझकर इसकी ये आवाज़ महशर कायम कर रखती है। मियाँ यानी कि उसमें जो खामी थी, आवाज़ ज़्यादा करती थी, उसकी भी खूबी मियाँ एहसान कर रहे हैं। मियाँ आजकल के ज़माने को देखो, ज़रा कुछ ऊंच नीच हुई तो चल मेरे भैया कचहरी। छूटते ही सवाल होता है, क्या उन्होंने मोटर का हॉर्न दिया था? क्या महलूक को ये बावर कहने का मौका था कि कोई मोटर करीब से गुज़र रही थी या गुज़रने वाली है? यानी कि वो मोटर अगर गुल न मचाए, अगर मोटर आवाज़ ना करे और एक्सीडेंट हो जाए, पहली बात तो एक्सीडेंट होगा नहीं, क्योंकि ये गुल मचाती है, शोर मचाती है, और शोर मचाने जब जाती है तो लोग उससे बच जाते हैं। मगर यहाँ पर अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो जज सवाल करता है कि ये आवाज़ करती है, अगर आवाज़ करती है तो आप क्यों नहीं हटे? हम 12 बरस से इस मोटर पर बैठ रहे हैं, हमारी मोटर के नीचे आदमी तो क्या, कभी चूहे का बच्चा भी नहीं आया। और क्यों आने लगा? जब मिनटों पहले तमाम सड़क वाले वाकिफ़ हो जाएं कि मिस्टर एहसान की मोटर आ रही है। पुलिस ने ज़बरदस्ती एक दफ़ा चालान कर दिया था, मगर मैंने मजिस्ट्रेट साहब से कहा था कि जनाब वाला, इस मुकदमे में किसी शहादत लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं। थोड़ी दूर मेरी मोटर में बैठकर चलिए, उसके बाद अगर आपकी राय हो कि इस मोटर के नीचे कोई आ सकता है तो जो चाहे सज़ा दीजिए। बेचारा कुछ समझदार आदमी था, राज़ी हो गया, मोटर में आकर बैठा। शोफर ने मोटर स्टार्ट की। एक दफ़ा मोटर ने ऐसी चीख मारी कि गरीब उछल पड़ा। कहने लगा, वेल, इंजन फट जाएगा। बस। मैंने कहा, जनाब आप घबराएं नहीं, 40 बरस में जब इसका इंजन नहीं फटा तो अब क्यों फटेगा? बहरहाल मोटर चली। थोड़ी ही दूर जाने के बाद साहिब ने कहा, वेल, हम समझ गया, मोटर वापस ले चलो। इजलास पर आने के बाद बिला शहादत लिए मुकदमा खारिज कर दिया गया। लिखा कि इस मोटर में हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं। अगर इसके आने से 5 मिनट पहले रास्ते वाले
ہوشیار ہو رہے ہیں، اپنی حفاظت کا بندوبست نہ کریں تو یہ تو ان کا قصور ہے، اس طرح سے وہ بچ گئے۔ اب آپ ہی فرمائیں کہ موٹر میں اتنی آواز ہونا خوبی ہے یا داخل ہے یا برائی ہے؟ احمد نے کہا یہ سب کچھ ہے، مگر آپ کی موٹر رفتار خوب ہے۔ کہے تو کیا باد بہاری چلی، کہے تو کیا بات کا مطلب ہوا ہے، باد بہاری چلی، تھوڑا سا مذاق اڑایا۔ تو یہاں پر بھی میاں احسان ہیں جو کہ یارباش کہے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو پرانی موٹر ہے جو کسی معنی میں کسی کام کی نہیں تھی، اس کو بھی اس کی خامیوں کو خوبی بنا کر پیش کیا، اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے ان کی موٹر کی وجہ سے ان کی موٹر آپ کی نئی موٹروں سے اچھی ہے نا۔ یہ ہمارا آپ جو سب ہے سبق یارباش وہ اب خاتمے کی اور ہے، اب ہم نیکسٹ اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔